Yes. Hello, good evening, everyone. A warm welcome to all. Thank you for joining us for today's webinar. I am Jyoti Kaur from Sajan Welfare Society. Sajan Welfare Society is mainly focused to empower women and make them healthy in the society. The mission of Srijan is to make women self-reliant with their own identity and career academic preparation and to make them realize their importance in the society. In this concept, Sajan is continuously organizing webinars and seminars in various fields. Now, I would like to introduce our team members who have successfully organized this webinar. Priyanka Tomar from Engineering Field, Mansi Parmar from Journalism, Sakshi Chore from Journalism, Ritu Tiwari from Journalism, Sania Javed from Journalism, Nikita Negi from Journalism, Himani Bisnit from Computer Science. तोड़ के हर पिंजरा जाने मैं कब उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा लो बंदिशें, फिर भी दूर मैं चली जाऊंगी, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। भले ही परंपरावादी जंजीरों से बांधे हैं दुनिया के लोगों ने मेरे पैर, फिर भी उन जंजीरों को तोड़ जाऊंगी। मैं किसी से कम नहीं, ये सारी दुनिया को दिखाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। Today we are presenting the role of women in mass media and presented by Ms. Niharika Singh Rathod, Ms. Ranjana Singh Rathod, a 26-year-old journalist who is currently working in India News Channel ITV network in Delhi. She did her graduation in BAMC from Loyola Academy, Hyderabad. Later, she moved to Delhi for further studies and did her master's diploma from Delhi Press Autonomous Institute, Masco Media in broadcast journalism. She also had done post graduation in journalism from distance education meanwhile working. So, welcome, ma'am, in today's webinar. Ma'am, starting from your biography, as you told that you came from a typical Rajasthani Rajput family where girls are still not allowed to move out further for studies and for their work purpose. So, how you overcome all these problems and who supported you to do your dream true, ma'am? Hi, everybody, and thank you so much, Jyoti, for such great words. And yes, बहुत ज़्यादा बिना बोले, I would straightforward directly come to the point that how I started my journey uh, is not more important. More important is that how I'm, continuing that because you go out, you move out from places, you stay alone, and you do your graduations or whatever field you would like to study. But then, pursuing the career of your choice is the most difficult task for a female these days. Matlab, it was there, now women have come out and they're doing well and tremendous job, which is, incredible. And as far as I am concerned, I was fortunate enough that my parents are, not that orthodox. My mom has always been the most important person for me, and she was the one who stood by me, and still she's standing by me. Whatever I wish to do in my life, she's always there. She has told me one thing, that wherever you go, whatever you do, never ever forget your values, your roots. So that is always there in my heart and my mind, that I belong to a Rajasthani family. I have certain culture, I have certain values, and I personally love that. So there are, of course, there are always two sides of a coin, which we cannot deny of. So always, if there are some positive, there are negatives too. Yes, as you stated, girls are still not allowed in my family to move out. Yes, they do. They are still doing whatever they wish to, but they are bound to certain things. Like they can just stay there and work or study or whatever. But metro cities like Delhi, Mumbai, Hyderabad, Pune, all those cities, they are not supposed to go and stay alone. At least for studies, where you don't have your own money to spend yourself. Parents, कहते हैं कि अपने यहीं पे रहे, क्यों खर्चा करना, whatever it is. So that was the most difficult task for me to make them understand that yes, I wish to do something else which is of course unique, but
there's something called mass media, there's something called mass communication, there's something called journalism, because nobody has ever done any such thing in my family. So they were, more of concerned for me, like you're going out for studying, and then what is the surety that you'll get work there? And because it's a kind of a job role where you actually don't have any surety, it's just you have to keep moving yourself. It's just you just have to struggle and struggle, and then of course you do get success in life. And I am living that life now I always wanted to live. So yes, that's the most important thing, and that was the most difficult part as well for me. मैम आप कुछ बताना चाहेंगे कि आज विमेंस को कैसे मीन्स मीडिया में आने का मौका तो मिल जाता है, लेकिन किन किन चीज़ों से उनको वापस पीछे भी धकेला जाता है? उनके ही कुछ कलीग्स रहते हैं जो उन्हें आगे नहीं जाने देते हैं, जैसे There कहते are हैं कि many, there are, yeah, I got your point totally, Jyoti. And there are many myths as well, जहाँ पर ये बोला जाता है कि especially media में, mass media में, which is films, television, print, radio, magazine, you have immense scope. It's just you have to find the right spot for yourself where you fit in, and you have to make your place, and you have to be there, struggle hard, work hard to be there, because getting stardom is easy, but maintaining that is the difficult job, I believe. So once you get that, do not get relaxed कि जो चाहिए था वो मिल गया है. It is not like that. It is life, and we are living in 21st centuries, जहाँ पर when men, women, there's nothing, there's no such concept. Competition is everywhere. So as a woman, I would like to tell other women ऐसा कुछ नहीं है. It's just the myth कि आपको आगे नहीं बढ़ना दिया जाता है, या फिर harassment है, inequality है, you know underrated आपको consider किया जाता है. It's all myth. If you are working hard, if you are genuine from the core, and if you really wish to do that, that zeal is there inside you, you can be wherever you wish to. Because I have achieved whatever I have right now is all whole solely because of my hard work. So yes, this is very important कि लोग आपको see, not only female, आजकल कंपटीशन इतना है कि कोई भी किसी को आगे नहीं बढ़ने देता है. एवरीबॉडी वांट्स कि हम वहां पर हों, फिर वो चाहे मेल है वो फीमेल हो. तो ये जस्ट एक मिथ है कि सिर्फ फीमेल को ही ऐसे डिग्रेड किया जाता है. इट इज नॉट लाइक दैट. वुमेन आर डूइंग ट्रेमेंडस जॉब. वी हैव फाइनेंस मिनिस्टर इज आल्सो फीमेल. our first विदेश मंत्री जो हमारी थी वो भी फीमेल थी. ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि बड़े बड़े बैंक्स की सीईओ फीमेल्स हैं. हमारे क्रिकेटर्स को देख लो, फिल्म इंडस्ट्री में देख लो, मास मीडिया की अगर मैं बात करूं तो वेटरन जर्नलिस्ट फीमेल्स है, टॉप लेवल के जर्नलिस्ट फीमेल्स है. दे हैव आल्सो मेड देयर स्पॉट, राइट. Many people also tried their best and would have tried their best to pull them down, right? But they never stopped. Personally, I speak कि शायद बहुत बार मेरे जिंदगी में भी ऐसे पड़ाव आते होंगे, एंड अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ. आप उससे बच नहीं सकते हैं, वो एक इंसान की जिंदगी का हिस्सा है. एंड आई सपोज अगर जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स नहीं है, सो लाइफ विल बी फ्लैट. कोई मजा ही नहीं है जिंदगी का. तो इट हैज टू बी देयर. और जब बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद और बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल के बाद जो आपको सक्सेस मिलती है, उसका मजा ही कुछ और है. तो अगर तकलीफें आ रही हैं और अगर बहुत सारे डाउन्स भी आ रहे हैं, फेलियर्स मिल रहे हैं, तो प्लीज घबराइए मत. जस्ट वेट एंड कीप वर्किंग हार्ड. आपको वो स्पॉट डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड. और हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता है. फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस. I went to many big organizations in starting of my career. Many people rejected me. Like I cannot even count on my fingers कि कितनी बार मुझे इंटरव्यू के बाद कॉल ही नहीं आया कि ठीक है आपको सिलेक्ट भी किया गया. बट आज की तारीख में people know me, even on social media. They approach me for workshops and other things, freelance things, for content writing, for stuff like that, because I've made my space in the media, in the industry, uh, just by doing hard work. So that's the only key, I believe, and everyone should believe in that. मैम आप कोई ऐसी चीज हमसे शेयर करना चाहेंगे कि आपको इतनी दूर इस पोस्ट पे आने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा?
मुसीबतों का तो मैं नहीं कहूंगी, बट यस, व्हेन यू नो लिव आउट एज अ फीमेल, एज अ वुमन, बहुत सी चीजें होती हैं कि आप बाहर निकलेंगे कैसे करेंगे, यू नो, व्हेन यू डोंट नो पीपल, एंड स्पेशली इन द इंडस्ट्री आपको कहते हैं कि बहुत कॉन्टैक्ट्स होना भी जरूरी है, बट अगेन आई वुड से इट्स ऑल मिथ। अगर आप काम अच्छा करते हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है, तो आपको स्पॉट डेफिनेटली मिलेगा। बट यस, स्टार्टिंग इन माय करियर, जब मैं बहुत शुरुआत की दौर में थी, बहुत मुश्किलें आपको आती हैं ये समझने के लिए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे, वो बोलेंगे मीडिया में कुछ नहीं रखा है, इट्स ऑल स्ट्रगल, और यू नो जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं वही लोग आगे जा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट्स जस्ट यू डोंट हैव टू लिसन टू दैट। इफ एट ऑल यू आर लिसनिंग टू दैट, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी बहुत लोगों ने ऐसा बहुत कुछ बोला है, बट व्हेन आई न्यू कि आई एम गुड एट समथिंग, अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं तो आज नहीं तो कल आपको एक्सपोजर मिलेगा, और आपको वो रिकॉग्निशन भी मिलेगा जिसकी आपको दरकार है, जो आप चाहते हैं हमेशा से, which is very important. I was always good at speaking, public speaking. When I was in school, I used to take part in almost all the extracurricular activities, and I went to college. I went to national level debate competitions. I don't know how many times. So I knew I'm very good at speaking. It's just I just wanted a right opportunity, and also it is I forgot to mention this point that grabbing the right opportunity is one of the smartest move. One should know how to play it, because बहुत सी opportunities आती है, आप figure out नहीं कर पाते. Sometimes the opportunity is also very good, but you are unable to see the cons of that. You need to figure that out, and also you need to be very smart at the same time, like which opportunity you have to grab as a woman, क्योंकि sometimes बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपको होती है कि आपको बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए जिंदगी में. For that reason आप गलत स्पॉट में भी जा सकते हैं. After all, it's an industry, so as a woman you need to be very sharp and very smart. मैम एक अच्छे एंकर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और मैम एक एंकर बनने के लिए मतलब किस मीडिया हाउस तक हमको पहुंच जाना चाहिए कि एक हम अच्छे एंकर के पोस्ट तक चले जाएं? See, I would like to start from very basic, that you need to have a journalism degree, and I suppose that's more than enough. You don't need to go for the diplomas or masters and all. But if you want to pursue, as a lecturer or as a professor, then you can move further. But if you want to be a journalist, as a news anchor, you can have a journalism degree, and then you can do an internship. एंड यस, लोगों को बहुत रहता है कि हमें डायरेक्टली न्यूज एंकर बनना है. देयर इज नो सच प्रोफाइल कॉल्ड न्यूज एंकर. It's just you have to know everything. You need to know writing as well. You need to have amazing command over communication skills, and you need to have immense knowledge, like as much as you can read. The first and foremost tip I would like to give is daily at least read one newspaper. This is like very 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 important. And the second point is as much as you can watch news on television. अगर टाइम नहीं मिला तो प्लीज न्यूज़पेपर तो डेली आप पढ़िए ही. इसके अलावा, see, many people are asking questions as well. I'll take those questions, but first I'll यस finish this. यस मैम. एंड यस, रही बात जॉब की, तो इंटर्नशिप से आप शुरू कर सकते हैं एक न्यूज रूम में. You can be an editor, you can be a content writer, you can be a producer, you can be a script writer, you can be a voiceover artist, you can be a reporter, you can be a news anchor, you can be a entertainment anchor, you can be anything you wish to. तो आप एज एन इंटर्न वहाँ पे न्यूज रूम में कोई भी प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं, और उसके बाद if you're good at it, the organization will automatically give you a chance. And if you have good command over communication skills, you have good knowledge, and you're a good presenter, that is very important. You're a good presenter, तो definitely आपको वो chance मिलेगा. मैम मूविंग ऑन टू सम मोर क्वेश्चंस. Yeah, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के. मैम आई thank you so विल much. मैम नाउ आई वुड लाइक टू आस्क साक्षी चोरे to ask some question from our team. Yeah, sure. गुड इवनिंग मैम. Hi Sakshi. मैम कुछ क्वेश्चन. हेलो मैम. मैम आपसे कुछ Hi. क्वेश्चंस पूछने थे.
जी मैम महिला सशक्तिकरण में मीडिया की क्या भूमिका है, उनको क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ता है? देखिए, women empowerment में media has been playing important role, and it is still doing so by giving, of course, good positions to women, and also बहुत सी ऐसी सीरीज हम बनाते हैं, बहुत से शोज हम ऐसे करते हैं, और जैसे बहुत सी गांव की महिलाएं होती हैं जो बहुत ही स्टार्टअप वाले काम करती हैं, जिनका एक्सपोजर कुछ नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूब पे नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, वो किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं है, बिकॉज दे आर अनेबल टू ऑपरेट दैट टेक्नोलॉजी से इतना वो लोग अवेयर नहीं है। तो इट इज अस, अगर हमें जैसे भी पता चलता है या जहाँ से भी हमें इसका नॉलेज मिलता है, वी गो देयर, वी कवर देम, वी गिव देम दैट एक्सपोजर। ऑब्वियसली एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिलता है जहाँ से उनकी स्किल्स जानने का लोगों को मौका मिलता है। बहुत सी ऐसी, स्पेशली लास्ट ईयर लॉकडाउन में बहुत सी ऐसी वुमेन को हम लोगों ने लोगों को कवर किया है, यू नो, who did amazing job working from home in terms of doing startups and all stuff। और वहां से आफ्टर गिविंग देम इंडिविजुअल इंटरव्यू का स्पॉट या फिर उनका स्पेशल शो कवरेज हमने जो दिया है, उसके बाद दे कॉल्ड अस एक्चुअली कि उनके जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको एक्सपोजर मिलता है, बहुत ज्यादा क्राउड या ऑडियंस जो उस चैनल की है, एज ए न्यूज़पेपर या मैगजीन फॉर न्यूज चैनल, तो वो सारी ऑडियंस आपको देख रही है। तो जो एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो आई थिंक महिला सशक्तिकरण के लिए जो गवर्नमेंट करती है या फिर जो पुलिस या प्रशासन को करना चाहिए, आई थिंक मीडिया इज डूइंग इक्वली फॉर देम। Hello, ma'am. Sorry, I was mute. Ma'am, who has been your motivation as you selected this field, ma'am? This is question from. देखिए, बहुत बहुत ऑब्वियस होता है कि जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो हम ऑब्वियसली अगर जर्नलिस्ट करना चाहते हैं तो हमारा इंटरेस्ट होता है न्यूज चैनल्स एंड ऑल में, तो आप बहुत न्यूज एंकर्स को देखते हैं। अर्णव गोस्वामी आई यूज्ड टू वॉच इन द वेरी बिगिनिंग when I was doing my graduation from Hyderabad. So yes, Arnav Goswami was someone I used to see a lot. These days, I wouldn't say a motivation he was, but yes, I like to watch him. I liked to watch him actually. And then I started watching Aaj Tak for Hindi news and all, and then Anjana Om Kashyap, Rubika Liaquat. There are many females. I wouldn't say a motivation as such, but they are someone who inspire me to be at least there. If they can do that, why can't I do this? So that sort of inspiration I always take from that, because see, Anjana Om Kashyap is Anjana Om Kashyap, Rubika Liaquat is Rubika Liaquat, Barkha Dutt is Barkha Dutt, and I am me, right? So I can't be them, never ever. What they are doing, I can't do that. What I can do, probably they cannot do that, and it's a vice versa. But at least a source of inspiration actually we need, which I got when I was studying, when I used to see those females on television doing tremendous job. I always thought कि हाँ ये लोग कर सकते हैं, तो why can't I? मतलब I am also human being, I am also a girl, I am also good at certain things, तो मेरे अंदर ऐसा क्या नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ? तो that sort of inspiration always I used to take from almost all the female news anchors or journalists or news reporters. Reporters, are the ones जो हमेशा फील्ड में रहते हैं दिन रात, और किसी भी इमेंस क्रिटिकल सिचुएशन में भी फीमेल रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। आज कोरोना महामारी में भी
you know, female reporters are on field, उनको परवाह नहीं अपने जान की. Last year भी बहुत reporters रहती थी, तो they are I think the real source of motivation. तो हम लोग स्टूडियो में फिर भी बैठते, लेकिन जो फील्ड पे फीमेल है, अब बारिश हो रही है तो बाढ़ को कवर कर रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, किसान आंदोलन पूरा उन्होंने कवर किया. So they are the real source of motivation, I believe, and I think as a female, they're very, very strong and they can do that. Why can't I do that? Or why can't any other female can do it? So more than a motivation, I think we should start taking inspiration from people. मैम, आज मीडिया की जो रेपुटेशन है लोगों के सामने, वो आप जानते हैं कि मीन्स अधिकतर लोग बोलते हैं कि आज मीडिया गोदी मीडिया हो गया है, तो आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, get these messages and my friends and from my social media audiences, people do ask me these questions, and it is like very, very common these days. It is all depends on organization to organization. But again, as an individual, I have my own opinions, I have my own point of view, and if I think something is correct, that is correct, and if I believe something is wrong, something is wrong. Like as an individual, an organization also has its own point of view, its own opinion. That's not my forte to talk on, but as an individual, we should have our own point of view. We should always have our voice. No one else can put words in our mouth, and no one else, we shouldn't allow others to do that. So that is the reason I am, whatever I do, if I have my own debate shows, if I have my own, reporting programs or whatever it is all about my views on a particular topic. It is, if I'm a producer of a show, it is all about my take on that particular topic. So as a journalist, you need to have that courage to, speak out. मैम, कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत लेट अपना करियर स्टार्ट करते हैं, तो मैम, is there any age limitation for women? No, never ever. Not only in media house, in any career, I believe. लोग समझते हैं यार, ये तो मेरे साथ ही पढ़ के निकला था और ये देखो मिलेनियर बन गया, मैं लाइक दैट्स द वर्स्ट थिंकिंग वन कुड एवर हैव. ये तो आपको कभी भी नहीं सोचना है. देरी से ही सही, लेकिन आपने शुरू किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लोग शुरू भी नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग सोचते ही रह जाते हैं. आप एटलीस्ट शुरू कर रहे हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग यू आर डूइंग इन योर लाइफ. नो मैटर आपने 25 की उम्र में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या फिर 25 की उम्र से आपने कमाना शुरू किया, जहाँ पर 25 की 28 की उम्र में लोग घर भी ले लेते हैं, आजकल गाड़ी ले लेते हैं. तो that shouldn't be there. That's again a wrong myth कि ऐसा कोई एज मीडिया में, ऑफ कोर्स ऐसा कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं. शुरुआत is important, starting is very important. That zeal, that guts to start at the age of 28 or 25 is really tremendous. If you're doing so, hats off to you. As a female also, if you're doing so, amazing job you're doing. Ma'am, we will take some questions from the chat also. Yeah. Ma'am, as a journalist, getting a reach in important or showing neutral and right news issues are important, or both? This is question from Sia. I didn't get you. Could you repeat the question? Ma'am, as a journalist, getting a reach in important or showing neutral and right news issues are important, or both? This is question from Sia. See, of course, both the things are important. As an individual, one would always wish to grow in their lives. Okay, if I have started from somewhere, I would also like to grow and reach to a certain position or to a certain organization I always want to be, at. So that is also very important. See, growing is a part of life. I would like to, remove reach word from there and put growth, because growth is a part of life. You need to grow in every aspect of your life. It could be your career, it could be your profession, it could be your personal life. And moving on to the another part of the question, where she asked showing the right news. Of course, it is very, very important. Media is known for that. Media is supposed for that only. We have to show the correct news. And you must have seen the Nirbhaya case. If media wouldn't have been there, अगर media ने वो case इतना prominently नहीं दिखाया होता, तो I don't believe कि उन आरोपियों को अभी तक सजा होती. And that's the only one example. We have, hundreds and millions of such examples.
जहाँ पर मीडिया अगर वो पॉइंट को नहीं रेस करता तो शायद वो चीजें वहीं दब जाती, या ऐसी तमाम चीजें जो निकल कर सामने आ रही हो कभी नहीं उठ पाती। फिर चाहे वो निर्भया का केस हो, फिर चाहे वो बुराड़ी कांड हो, फिर चाहे वो किसान आंदोलन की खबरें हो, फिर चाहे वो कोरोना महामारी की खबरें हो, जहाँ पर रैलियों को बंद करने के लिए भी मीडिया ही कह रही है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके कह रही है, मीडिया ही दिखा रही है कि कुंभ में किस तरीके से साधु संतों की मौत हो रही है, महाकुंभ को क्यों नहीं बंद किया जाता। रैली और महाकुंभ में देर आर नो लिमिटेशन ऑफ पीपल, बट शादी अंतिम संस्कार वहां पे लिमिटेशन ऑफ पीपल आपने लगाया हुआ है। So it is all because of media. Media has changed. Of course, media has their own ways to show a news, but of course, it is showing the right news. And because of media, I still believe, what journalism can do in the world, what change journalism can bring in the world, no other profession could ever do so. Ma'am, another question is from ma'am, can you please give your opinion on the scope of English journalism in India, as we are basically Hindi oriented? This is See, also from Sia. it is up to the audiences and up to you. If you wish to pursue English journalism in India, we do have scope, we do have channels, we do have newspapers, and of course, print English. And when you talk about English journalism, print media is something which is booming, which is glowing, which is growing. You have magazines, you can be a content writer, you can be a blogger. See, media has changed a lot over the period of time. It is not the same media we used to work earlier. अभी बहुत तरीके चेंज हुए हैं, रेस चेंज हुए हैं, जहाँ पर मीडिया इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली न्यूज चैनल्स और रेडियो और प्रिंट। अभी मीडिया का मतलब आप, यू कैन बी अ ब्लॉगर, यू कैन बी अ इन्फ्लुएंसर, एंड you can be an artist, you can be a writer, and you can be a poet, you can be anything. See, if you are good at English writing, you can be, do things. Immense scope you have in English journalism as well. English news channel no doubt थोड़े से कम है, क्योंकि obviously majority हिंदू audience है, हिंदी audience है हमारी country में, तो that is of course there, but that doesn't mean you have, less scope. It's just you have need to find the right spot for you again. उसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क डेफिनेटली लगता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, बट आई वुड सजेस्ट गो फॉर मैगजीन्स। बहुत अच्छा वहाँ पर स्कोप है इंग्लिश जर्नलिस्ट का, स्पेशली फीमेल्स का। दे आर डूइंग ग्रेट ग्रेट जॉब्स। आई हैव मेनी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड हु आर वर्किंग इन ग्रेट मैगजीन्स। न्यूज़पेपर में आप जा सकते हैं, रेडियो में आप जा सकते हैं, Hindi, even Hindi news channels and Hindi news radio stations, they do have slots for English shows. So yes, you can do well. And also sports आजकल बहुत चल रहा है, आजकल IPL चल रहा है, तो you can be, and the best part is you can be a bilingual journalist. See, I am covering IPL in English and I'm doing, news shows in Hindi. So that's something which is very, very important. If you are bilingual, you have, immense scope in journalism. Ma'am, another question is also from Sia. Yeah. She's asking, we have very versatile kind of media in India, but what is lagging us for having the prominent international news channel from our country? See, जब से FDI आया है तब से we are into the process, and in coming few years you can see, established news channels internationally as well. But for now, because एक पॉइंट ये भी होता है सिया कि आप क्या देश है, आपकी समस्या है, आपके मुद्दे हैं, आपके टॉपिक्स हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया को ऑफ कोर्स इसके अंदर दिलचस्पी कम होगी, आपकी कंट्री के लोगों को ही होगी। तो एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक TRP पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस न्यूज को कितना ऑडियंस मिलेगा। अभी मैं, जैसे किसान आंदोलन था, बहुत फॉरेन सेलिब्रिटीज ने भी, इंटरनेशनल लेवल के सेलिब्रिटीज ने भी उसको लेकर बहुत ट्वीट किया, उसको लेकर बहुत सुर्खियों में रहे। तो दैट वाज समथिंग व्हिच गॉट इंटरनेशनल अटेंशन एज वेल। बट हर खबर वो अटेंशन पाए वो जरूरी नहीं है। हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें इंटरनेशनल मीडिया इतना दिलचस्पी क्यों लेगा? तो दैट इज समथिंग, एंड दैट्स द रीजन कि अभी तक शायद इतना एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन हमने नहीं देखा इंटरनेशनली अपना खुद का। बट जिस तरीके से इंटरेस्ट अब इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कंट्री के मुद्दों और इश्यूज को लेकर दिख रहा है, आई बिलीव एंड आई सपोज कि आने वाले सालों में आपको ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी दिखेगा जल्द ही।
मैम समथिंग कुछ और आप कहना चाहेंगे हमें? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बस चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि वो कहते हैं कि उड़ान की तो सबको जरूरत होती है, खुले आसमान की जरूरत होना बहुत जरूरी है। तो खुला आसमान इतनी आसानी से नहीं मिलता है, आपको खुला आसमान अपने लिए बनाना पड़ता है। Always seek your heart out. Never ever let somebody else, put you down. It could be your, friends, it could be your relatives, it could be your family members, it could be your, professional colleagues. हमेशा अपनी आवाज को उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आवाज उठाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप रेबल हो जाइए, नहीं। Try to make your loved one understand that what you feel, what you want in your life, because of course at the end it is your life. You need to live it. तो आपको अपनी लाइफ अकॉर्डिंगली अपने अनुसार बनानी है, तो यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट, एंड वर्किंग हार्ड इज समथिंग द ओनली की आई बिलीव, not only for the success but for the happiness. Hard work for your relationships in life, hard work for your career in your life, hard work to live, to achieve what you want in your life. That's the only key I believe. There's no shortcut. बहुत लोगों को जल्दी होती है कि हम जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो जाएं या जल्द से जल्द बहुत कुछ पा ले दुनिया में या जिंदगी में, ऐसा हो नहीं पाता है। शॉर्टकट अगर आप अपनाने जाएंगे तो शॉर्टकट का शॉर्ट आउटपुट भी होता है, और आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए तो आपको हार्ड वर्क करना है, आपका करियर भी होता है। डू नॉट लूज होप देयर, क्योंकि बहुत सी फीमेल ऐसी हैं जो सक्सेसफुली अपनी लाइफ चला रही हैं, जी रही हैं, बहुत सक्सेसफुल है मैरिड लाइफ के बाद भी। तो मैरिड लाइफ के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि हमें गिव अप कर देना चाहिए, नेवर एवर थिंक दैट। यू कैन ऑलवेज परस्यू whatever you want to, it's just you need to make the other person understand कि आपकी जिंदगी से आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, and if the person is genuinely yours, he or she would definitely understand that. तो कभी भी चुप मत रहिए, जो दिल में वो चीज बोलिए, होगा चाहे ज्यादा से ज्यादा, शायद नहीं होगा जो आप चाहते, लेकिन क्या पता वो हो जाए जो आप चाहते हैं। तो कभी भी मैं हमेशा, मेरा एक ही मंत्र है जिंदगी में कि मैं कभी कोई रिग्रेट नहीं रखती हूँ। तो कभी रिग्रेट मत रखना कि शायद मैंने उस पॉइंट पे वो बोल दिया होता, तो शायद उस पॉइंट पे मैंने ये कर लिया होता, या शायद उस पॉइंट पे मैंने अपॉर्चुनिटी ले ली होती तो आज मैं इस स्पॉट में नहीं होती। तो वो रिग्रेट जिंदगी में आपको कभी नहीं रखना, क्योंकि regrets always leads to loses। तो आपको अगर विनर बनना है तो आपको हमेशा बोलते रहना है जो आप फील करते हैं। ऑलवेज स्पीक योर हार्ट आउट। आपके पेरेंट्स को बोलिए, आपके लव्ड वंस को बोलिए, आपके ब्रदर सिस्टर जो भी, एटलीस्ट उनको ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड आपको जिंदगी से चाहिए क्या, क्योंकि that there's only one life, you are not going to get it again, just live it happily। मैम आप सृजन वेलफेयर सोसाइटी के बारे में कुछ बोलिए। Of course, Sturgeon Welfare Society has given me this opportunity to, talk to you all beautiful ladies, women out there. So I am, very grateful and very thankful to Sturgeon Welfare Society. And also, I am like tremendously impressed by the work they are doing. They're doing a great job in the field of education, in the field of medical, for rural areas, especially for women. So they are doing amazing job in this pandemic where people are locked down in four walls, and you guys are going out doing things for well-being of women, to raise them out, to teach them, to educate. See, education is something जो जितनी दी जाए उतनी कम है, और जो एजुकेशन देता है that is someone who's out of the box. So Sturgeon Welfare Society, no doubt, is doing a great job, and I wish you all the good luck and best wishes for your future work process. एंड एक और क्वेश्चन आया है, आई विल सी दैट। When the government will have to go to the backward rural areas for the rural development of women, and women there will have to be made aware from the facilities and their rights Can, from the can you government. can you repeat the question? I didn't get you. The government will have to go to backward rural areas for the real development of the women. Your voice is not coming. I mean, like, can you be little clear? Your voice is like Ma'am, cracking. the government will have to go back to the rural areas for the real development of the women, and the women there will have to be made aware from the facilities and their rights from the government.
I'm sorry, I still didn't hear you. Your voice is like really very cracking. मैम दैट क्वेश्चन इज दैट कि गवर्नमेंट को रूरल एरियाज में जाना पड़ेगा और फिर उनको उनके राइट्स के बारे में बताना पड़ेगा जो गवर्नमेंट्स ने दिए हैं. See, awareness is something which is playing amazing role in the field of, especially rural areas जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है. Again, media is doing great job in that field as well. Government policies बनाती है महिलाओं के लिए, खासतौर पर जो rural areas की महिलाएं उन तक पहुंचेंगी कैसे? तो only medium is media, via newspapers, via radio, via television, वहाँ पर ये सारी चीजें पहुंचाने का काम नहीं करते हैं. तो that's under process and I believe कि most of the parts ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को पता है कि उनके लिए क्या किया जा रहा है in terms of, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर सुविधाएं हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर सुविधाएं हो, चाहे वो रोजगार को लेकर सुविधाएं हो महिलाओं के लिए जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है, उनकी स्कीम उनकी परियोजना है जो भी सरकार ने, वो सारी मीडिया के जरिए उन तक पहुंचाने का पूरा काम किया जा रहा है, सक्सेसफुली किया जा रहा है. आने वाले समय में बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत सी महिलाओं से मेरी मुलाकात जब तक हुई है, बहुत कुछ का कहना है कि शायद उन्हें पहले कुछ चीज़ें पता नहीं थी. जिस तरीके से बीमा को लेकर जानकारी होती है या फिर उनके इलाज को लेकर जो मुफ्त इलाज उनको दिया जाता है या फिर मुफ्त शिक्षा को लेकर दिया जाता है, वो तमाम चीजें जो उनको बताने का काम है वो मीडिया सक्सेसफुली कर रही है. मैं बिलीव आने वाले सालों में वो और भी ज्यादा extensively आगे बढ़ेगा काम. Ma'am, any college suggestion for being doing College, journalism? see, it is all depends on a person. See, it is also very important to know the financial, condition of a person. तो बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं हमारे कंट्री में लेकिन वो बहुत महंगे भी हैं. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगे कॉलेजेस से ही एजुकेशन लेनी. मैंने बहुत ही जनरल और बेसिक से कॉलेज से ही मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने मास्टर्स डिस्टेंस की गुरु जनरेशन यूनिवर्सिटी से हिसाब से हरियाणा की. Meanwhile, I started working that time. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी कॉलेज से करें, आप किसी भी बेसिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री करें. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ज्ञान कितना, किताबी नॉलेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको दिमागी ज्ञान कितना है. डिग्री इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट कि हाँ डिग्री आपको होनी चाहिए कि आपको लेनी है, दैट इज देयर, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी नॉलेज इम्पोर्टेंट है कि आपने ये जो 3 साल पढ़ाई की बैचलर किससे आपने सीखा क्या. प्रैक्टिकल जब जिंदगी में आप उतरेंगे, आपके प्रोफेशन में उतरेंगे तो आप इसे अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं. तो डिग्री सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ ग्रेजुएट है इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉलेज से कर सकते हो जलेबी की, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको किसी नामी कॉलेज से करना है क्योंकि बहुत नामी कॉलेज से करे हुए लोग भी आज हमारे साथ ही काम कर रहे हैं और हम देखते हैं कि हमने बहुत बेसिक से कॉलेज से पढ़ाई की है. तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपके अंदर नॉलेज कितना है, आप पढ़ते कितना है, का नॉलेज आपका है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Ma'am, one more question is कि how to be a public relation officer? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जर्नलिज्म. जर्नलिज्म की जब स्टडी करते हैं तो आप एडवर्टाइजिंग भी पढ़ते हैं, आप फिल्मेकिंग भी पढ़ते हैं, आप रेडियो भी पढ़ते हैं, आप बहुत से ऐसे स्कोप्स हैं एंड पब्लिक रिलेशंस बना होता है. तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में इंटर्न कर सकते हैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, क्योंकि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इज समथिंग जो बहुत बड़ी पोस्ट है, डायरेक्टली आपको नहीं मिल सकती. पीआर इंटर्नशिप्स भी आप बहुत होती हैं तो आप मैगजीन्स में पीआर इंटर्नशिप कर सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज as a PR professional, you can also work with corporate culture in corporate companies, MNCs also you can go, and we do have big advertising agencies जहाँ पर आप काम कर सकते हो. क्योंकि as a journalist, as a news anchor, I am stick to news channel, right? So वहाँ पे स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, लेकिन एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर स्कोप बहुत वाइड है. आप किसी भी कंपनी में, क्योंकि आजकल हर कंपनी को एडवर्टाइजिंग की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल का नया फोन अगर लॉन्च हुआ है तो वो एडवर्टाइजिंग के जरिए ही मार्केट तक पहुंचेगा, राइट? एडवर्टाइजिंग के जरिए ही लोगों तक उसका पहुंचेगा. तो एज अ पीआर प्रोफेशनल यू कैन राइट प्रेस रिलीजेस, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, आप उनके लिए कंटेंट लिखते हैं. तो आप एक कॉर्पोरेट कल्चर में भी काम कर सकते हैं, आप न्यूज चैनल के लिए काम कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम कर सकते हैं, आप किसी इंडिविजुअल से पीआर प्रोफेशनल बन सकते हैं, किसी सेलिब्रिटी से पीआर प्रोफेशनल बन सकते हैं, आप किसी बड़े पॉलिटिशियन से पर्सनल पीआर प्रोफेशनल बन सकते हैं, किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से पीआर प्रोफेशनल बन सकते हैं. तो एज ए पीआर प्रोफेशनल आपका जो स्कोप है वो इमेंस है. And ma'am, qualification? क्वालिफिकेशन
है आपको जर्नलिज्म में डिग्री करनी है, मास कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन आपको सब पढ़ाया जाता है, एडवर्टाइजिंग पढ़ाई जाती है, फिल्म मेकिंग पढ़ाई जाती है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, यू नो, न्यूज एंकरिंग, रिपोर्टिंग, एवरीथिंग यू लर्न। तो मैंने बैच में सब कुछ सीखा। मैंने इंटर्नशिप भी की है पीआर में, मैंने एडवर्टाइजिंग में भी की है, बट मैं ऑलवेज वांटेड टू बी न्यूज एंकर, तो मैंने लॉन्ग टर्म करियर अपना न्यूज एंकरिंग का चूज किया। बट आई हैव यू नो टेकन द टेस्ट ऑफ ऑल द फील्ड। Ma'am, more questions are coming. Yeah. Uh, Ma'am, here is one question that I am a law graduate. Then tell me what qualification required for journalist. How can I join media agency? अगेन अगर आपने लॉ भी किया है, देखिए बहुत ही मतलब मजाकिया लग सकता है कि बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल न्यूज एंकर है, जो इंजीनियरिंग करके आए हैं, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है जर्नलिज्म की या मास कम्युनिकेशन की, जो इंजीनियरिंग से थे और इंजीनियर नहीं बन पाए अनफॉर्चुनेटली, और वो लोगों ने जर्नलिज्म में ट्राई किया और आज के लिए बहुत सक्सेसफुल न्यूज एंकर है। वो टीवी 9 भारत वर्ष पर है, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड देयर आर मेनी अदर्स। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप जर्नलिज्म ही करें, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 से 4 साल अपने गवा चुके हैं किसी और फील्ड में बैचलर करके, तो इट इज फाइन। आप डायरेक्टली मीडिया कंपनी में अगर आप अच्छा लिखते हैं, मैं वही बोलूंगी, आपके अंदर ज्ञान कूट कूट के अगर भरा है, आप अच्छा लिखते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, तो आप किसी भी न्यूज चैनल को अप्रोच कीजिए, एचआर को मेल लिखिए, उनको एक स्क्रिप्ट मेल कीजिए अपनी लिखी हुई, अगर आपको पसंद आती है तो आपको एज ए इंटर्न वहां बुलाएंगे। 2 से 3 महीने आप इंटर्नशिप कीजिए, आप पूरा माहौल न्यूज रूम में काम कैसे होता है तो समझ जाएंगे। उसके बाद आपको खुद को अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती है। इट हैपेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट हैपेंस ग्रेजुअली, जहां पर आप खुद भी सिस्टम को समझने लगते हैं कि न्यूज रूम में काम कैसे होता है। एक एडिटर, सबसे पहले एक खबर आपके पास आ रही है, रिपोर्टर ने वो इनपुट डेस्क पे पहुंचाई है, तो वो कैसे पहुंचेगी जो लोग लिखते हैं खबर, तो वो एक फिर वो जाती है कंटेंट राइटर्स के पास, वो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर देयर समथिंग समवन कॉल्ड रन डाउन प्रोड्यूसर जो पूरा न्यूज शो बनाता है, देन इट कम्स टू अस जो हम लोग डिलीवर करते हैं, देन देयर आर फोटोग्राफर्स, अगर वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है तो फिर उसको एडिट किया जाता है, तो एडिटर्स आते हैं। तो आपको सब समझ में आएगा कि आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो एक्चुअली है क्या। आपको लिखने में दिलचस्पी है, या आपको वीडियो एडिटिंग में दिलचस्पी है, या आपको फोटोग्राफी में या वीडियोग्राफी में दिलचस्पी है, आपको रिपोर्टिंग में या न्यूज एंकरिंग में, न्यूज प्रेजेंटेशन में, वो आप जब तक काम वीडियो में नहीं करेंगे, स्पेशली व्हेन यू आर फ्रॉम सम thing else, like you have done law, you have done engineering, you have done MBA or whatever sort of graduation you have done, तो वहां से अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं भी करते हैं बट आपको अच्छा लिखना आता है, आप अच्छा बोलते हैं, या फिर कोई भी अदर स्किल आपके अंदर है जो कि जर्नलिज्म फील्ड से रिलेटेड है, तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं किसी भी चैनल को, न्यूज़पेपर को, आप एचआर को अप्रोच कीजिए, आप उनको मेल कीजिए, वेबसाइट पर जाइए, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मेल आईडी हमेशा मेंशन होती है, उस मेल आईडी के साथ अपना एक कवर लेटर लिखिए कि आपको क्या आपने किया है, क्या पढ़ाई की है, किसमें दिलचस्पी है, कौन से फील्ड में, और एक सैंपल अपना, अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आप अपनी स्क्रिप्ट मेल कीजिए साथ में, आप अच्छा बोलते हैं तो कोई वीडियो किसी खबर का तो किसी भी कंटेंट का आप बोल के रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो उनको सिर्फ एक अच्छा यू नो कैंडिडेट चाहिए, डिग्री से आजकल उतना इंपॉर्टेंट या डिफरेंस होता नहीं है, इट डजंट मेक मच डिफरेंस, it is just how much you are aware of the thing and how talented you are, that's the only thing which matters. Ma'am, another question is the scope of travel journalism. Travel journalism again is a very hyped career these days. आजकल ट्रैवल जर्नलिज्म को मैं इन अदर वर्ड्स बोलूंगी, जो ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं, बहुत ही कूल फील्ड भी है और बहुत पैसा भी है, नो डाउट इसमें आपके पास बहुत अच्छा इनकम आपका होता है। एज ए ट्रैवल जर्नलिस्ट यू कैन बी एसोसिएटेड टू चैनल्स लाइक डिस्कवरी एंड अदर, जहाँ पे ट्रैवल शोज होते हैं। ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ ट्रैवल ब्लॉगर, आपको स्पेसिफिकली जर्नलिस्ट नहीं बनना है ट्रैवलिंग का, तो आप ट्रैवल ब्लॉगर बन सकते हैं ऑन इंडिविजुअल बेसिस। आप अच्छा ब्लॉगिंग करते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, सी बेसिस वही है कि आप अच्छा लिख सकते हैं और अच्छा बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ, तो अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जा रही हूँ या किसी होटल में मैं स्टे कर रही हूँ और वहां मैंने उनके पूरे होटल को कवर किया और मेरी यू नो सोशल मीडिया पे बहुत फैन फॉलोइंग है या बहुत फॉलोअर्स हैं, कंटेंट मैंने वहां डाला, उनको व्यूवरशिप मिल रही है, उनको क्या चाहिए, एवरीवन नीड्स एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन, मैं उनको प्रमोशन दे रही हूँ, मैं उनके यू नो होटल को प्रमोट कर रही हूँ अपने पेज पे या अपने अकाउंट पे, तो ऑब्वियसली दे वुड पे फॉर मी। तो ये आजकल एक बिजनेस बन गया, एक प्रोफेशन बन गया है जहाँ पर people would pay to you know, just to stay there, just to eat food, you know, just to taste food, आपको फ्री में सब मिल रहा है।
So I think that's one of the coolest profession these days, and you can anytime pursue that. And you don't need to have a degree for that. Ma'am, there is one more question. Uh, is media equal to IAS? देखिए बहुत से आईएएस एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने आईएएस क्रैक नहीं किया है, तो आज की तारीख में वो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जिसमें अंजना ओम कश्यप मैडम का नाम भी शामिल है, जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली उनसे वो उनका क्रैक नहीं हुआ, तो आज वो बहुत सक्सेसफुल जर्नलिस्ट है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस चीज के लिए आप बने होते हैं, आप घूम फिर के वहां पर आ ही जाते हैं। शायद वो आईएएस के लिए कभी बनी ही नहीं थी, और यही वजह है कि आज वो अंजना ओम कश्यप है। Everybody knows her, everybody loves her, you know, the way अगर वो आईएएस क्रैक कर लेती तो शायद आज हमारे पास एक अंजुम कश्यप नहीं होती, राइट? तो कहते हैं जिस चीज के लिए आप बने होते हैं, आप घूम फिर के वहां पर आ ही जाते हैं। तो अब बहुत से आईएएस एस्पिरेंट्स आपको मिलेंगे जिन्होंने आईएएस क्रैक नहीं किया, क्योंकि मीडिया ऑफ कोर्स इज इक्विवेलेंट टू बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, क्योंकि जितनी नॉलेज और पढ़ाई की जरूरत आपको वहां होती है, उतनी नॉलेज और पढ़ाई की जरूरत आपको यहाँ पे होती है। आपको डेली बेसिस पे नॉलेज होना चाहिए, हर दिन क्या गुजर रहा है, करंट अफेयर से आपको बहुत ज्यादा अवेयर होना चाहिए। जितनी नॉलेज आपके पास होगी उतनी कम है, क्योंकि अब कुछ भी वो नहीं रह गया दूरदर्शन टाइम में जहाँ टीवी सामने होती थी, आप पढ़ लेते थे और चले जाते थे। नहीं, अब सब कुछ ब्रेकिंग खबर आ रही है, बड़ी खबरें आती हैं, सब कुछ स्पॉन्टेनियस है, ऑन द स्पॉट आपको जाना है, रिपोर्ट करके लाना है। कुछ भी नहीं बोल सकते हैं आप ऑन एयर ऑन स्क्रीन। आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, आपके पास डिटेल होनी चाहिए। तो journalists are equivalent to, I suppose, IAS officer. The question is apt and absolutely correct. जितना नॉलेज उन लोगों को होता है पढ़ाई और प्रिपरेशन के दौरान, उतना नॉलेज हम लोगों को भी होता है, क्योंकि डेली बेसिस पे हम लोग अपने आप को नॉलेज से बूस्ट करते हैं। Ma'am, your views on media management and planning and its scope in India? मीडिया मैनेजमेंट एंड प्लानिंग स्कोप इज ऑल्सो वेरी ट्रिमेंडस, और बहुत ही फैशनेबल करियर है आज की तारीख में वो। और बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं हमारे कंट्री में उसके लिए, जहाँ पर मीडिया मैनेजमेंट की पढ़ाई अच्छी होती है। और अगेन मीडिया मैनेजमेंट इज समथिंग जो आप कॉर्पोरेट कल्चर में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। स्कोप इसका बहुत ज्यादा है, सिर्फ आप स्टक नहीं होते न्यूज चैनल्स में, आप ये किसी भी एमएनसी, प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप, कहीं भी आप अप्रोच कर सकते हो। और मीडिया मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, पीआर डिपार्टमेंट आजकल हर कंपनी में होता है, क्योंकि सबको प्रमोशन की जरूरत है। विदाउट प्रमोशन आई डोंट थिंक कि किसी भी चीज को सक्सेस यहाँ पर मिलता है। पीपल वुड नो यू वाया प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, राइट? सो दैट इज देयर। एंड मैम, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता होगा, तो मैम आप ऐसी कोई चीज शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली बहुत करना पड़ता है। रिसेंटली व्हेन I personally tell this incident of mine when I went out for to cover the Kisan Andolan. I was there at Singhu border, जहाँ पे किसान आंदोलन हो रहा था, और बहुत क्राउड था, बहुत मीडिया वहाँ पे थी। जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि बहुत गोदी मीडिया तरीके के सवाल होते हैं, so I was standing in middle of crowd of like around 100 to 200 people, and they were continuously पीछे से गोदी मीडिया, biased media, this media, that media, until here यहाँ तक आ गए थे। As a female, I was all alone there, and my responsibility at that time was to deliver the correct news, because I was on air. I cannot shout back to them, I cannot run away from the situation. You have to be there because you are live. You cannot move, you cannot give them reactions, you cannot be distracted from them. So that is the biggest challenge, I suppose, as a women especially, because वहाँ पे हजारों का crowd रहता है, 100, 200, 500 लोग वहाँ पर खड़े थे, सारे मेल थे, आप अकेली फीमेल वहाँ पर है। आपको नहीं पता, बहुत से रिपोर्टर्स जख्मी भी हुए हैं, बहुत से लोगों को पत्थर मारे गए हैं, बहुत से मीडिया वालों को, क्योंकि they didn't like us, they thought we are not covering them, but we were actually for them, क्योंकि अगर इतना हाइप मिला है फार्मर प्रोटेस्ट को, तो it is all because of media. So I was just standing there, they were continuously shouting कि यहाँ आके वो चिल्ला रहे, यहाँ आके and आप एक वक्त को डर जाते हैं कि कभी आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, but then you don't need to lose hope there. आप जो कर रहे हैं वो आपको करना है as a journalist. It is your responsibility. When you are live, you are live, no matter वहाँ पे बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपको खड़े होकर लाइव देना। That is something your responsibility is, and that the a side of the point जो लोग मीडिया का जर्नलिस्ट का नहीं देखते। सवाल बहुत खड़े होते हैं हम लोगों को लेके, लेकिन हम लोग ही होते हैं जो बाढ़ में जाके कवर करते हैं, हम लोग ही होते हैं जो कोरोना महामारी में जाकर लोग अपने आप को सेव कर रहे हैं। तो हम डेली बेसिस पे ट्रैवल कर रहे हैं, लॉकडाउन में सब कुछ चार दीवारी में कैद था, लेकिन
मीडिया चल रहा था, फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर हमने भी काम किया है। तो दैट इज अदर साइड ऑफ द कॉइन जो लोगों को समझने की जरूरत है कि बिकॉज ऑफ द मीडिया दे केम टू नो मेनी थिंग। जो बहुत बड़ा टास्क पैंडेमिक में किसने निभाया तो मीडिया ने है, जहाँ पर अवेयरनेस, जब तक अवेयरनेस नहीं होती, डूज एंड डोंट्स लोगों को नहीं पता थी, क्योंकि एक ऐसी नई बीमारी थी जिसके बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। लेकिन वो डूज एंड डोंट्स बताना, जो हेल्पलाइन नंबर से लोगों तक पहुंचाना, कौन लोग आपको सहायता कर रहे हैं वो आप तक पहुंचाना, सरकार कहाँ पे कैसे आपको फ्री राशन देगी वो आप तक पहुंचाना, वो कैसे आपको पता चल रहा था? इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ मीडिया। अगर हम भी लॉकडाउन में अपने आप को कैद कर लेते, हम भी अपनी जान की सुरक्षा की खातिर घरों में रहते, तो शायद आज तक वो जिंदगी जो बहुत की बची वो नहीं बच पाई होती, और जो जानकारी आप तक पहुंची जिससे कि आपने अपनी जान की सुरक्षा की शायद नहीं पहुंच पाती। मैम एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं मैम। जी एक तो ये है कि हाउ टू अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप इन गुड मीडिया हाउस इन या दिस पेंडेमिक, एंड मैम विदाउट पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा दैट इज जस्ट परसुइंग बैचलर इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, वी आर एलिजिबल टू बिकम एन एंकर? yes, of course you are, because as I told you कि आपके पास सिर्फ ज्ञान होना चाहिए। अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो आप बिना डिग्री के भी बन सकते हैं, बट मैं उस चीज की सपोर्ट नहीं करूंगी। मैं बोलूंगी एटलीस्ट आप डिग्री लीजिए, क्योंकि ग्रेजुएट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू नेवर नो दिस लाइफ, कल को आपको किसी और फेज में कहीं भी जरूरत पड़ सकती है आपकी डिग्री की, तो डिग्री आप जरूर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन इज इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। अगेन आप न्यूज चैनल्स की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, एचआर की मेल आईडी होती है, आप एचआर को कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना सैंपल भेजिए। अगर आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं या अच्छी एडिटिंग करते हैं, जो भी काम आपका है आपने किया है, उसके सैंपल्स भेजिए कवर लेटर के साथ, सीवी के साथ, और आपको डेफिनेटली अप्रोच करें। Thank you, ma'am. Listening to you makes everyone here very inspiring, ma'am. And thank you very much, everyone who gave us our valuable time. And we are heartily thankful to Ranjana, ma'am, for being with us in this webinar. We are also thankful to Advocate Deepa Chauhan from Gwalior and Dr. Deepika Agrawal from Bhopal. They also join our webinar. And thank you so much. And now here we are ending this session with this promise that we will conduct these types of inspirational webinar more and more for welfare of women. Thank you, ma'am. Thank you so much, Jyoti, and thank you the whole team of Present Welfare Society to give me this amazing opportunity to talk to you all, because as a journalist, I generally do not get time. And I am always honored to be part of such initiative where I can inspire other women, because I am someone who has gone through it. When I wanted someone, nobody was there to inspire me. Nobody was there to make me understand what is right and what is wrong. It was only me who made my choices and did whatever I wished to. So it is always good to have someone who can show us the right path. So yeah, again, it's a great opportunity to be part of this live session. And yeah, women who all were there, who heard me, I wish you all the good luck for your lives, and anything or any questions, more questions you have, you can ping me on Instagram. It is Ranjana, hashtag sing, hashtag Rathod. You can DM me there, or you can email me also at ranjanasikapul@gmail.com. So yeah, we can connect over there as well. And good luck to Sajan Welfare Society. Thank you so much, Jyoti. Thank you so much, Shikha ma'am. Thank you so much, Niharika. She has been in touch with me, and she was doing great job, and I believe she will do great work. And I wish you all the females associated with you and all the interns who made this live webinar possible today. Thank you so much. And the two respected women who were part of our live session, doctors and lawyers. Thank you so much, ma'am. You joined me and gave your time to listen to me. That is again a big pleasure for me. Thank you so much, ma'am. Nice talking to you all. Bye bye. See you all. Bye bye, ma'am.